mental social well-being, not merely the absence of the disease of the reproductive system. ओके, आपकी जैसे बायोसाइको सोशल मॉडल के अकॉर्डिंगली आपकी हेल्थ की डेफिनेशन है, सेम इज द हेल्थ डेफिनेशन है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी रिप्रोडक्टिव अगर डिजीज की एब्सेंस जो और प्रेजेंस जो है वो आपको इल नहीं बताती। नाउ if you are working in a gynae or OPD, what type in gynae OPD, what type of patient will come, right? And with the psychological morbidity, like having the problem with their like reproductive health, but it has high risk for the psychological morbidity. Suppose with infertility, you know that infertility is again stigma in East, even in West. And it matters a lot. Social pressure होता है, family pressure होता है, even couple obviously themselves are worried about that. Females who have long-standing premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome, I'll let you know that if it is to some extent, then it is bearable. It is long-standing and extreme. आपकी पर extreme है, obviously that will affect your function. Your efficacy will be decreased. Dysmenorrhea. Again, dysmenorrhea is a great issue. If you are due to dysmenorrhea, if you are taking leave from your office or your working place or your studies 1 to 2 days, that's affecting per month. That is obviously affecting your whole efficacy. Chronic pelvic pain, hysterectomy. Hysterectomy, after hysterectomy, female patients have psychological problems. These psychological problems are also due to the hormonal problem, because आपको पता है कि जो hysterectomy के साथ ovaries भी sometimes ovaries भी एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है। तो इस वक्त क्या होता है कि वो जो पेशेंट है इफ ही इज इन द एज ऑफ 35 और 40, तो अब उसकी जो बॉडी सिस्टम है दैट इज like after menopause, that is acting like because हार्मोन सारे उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गए हैं। तो इसी तरह उसका इफेक्ट किस पे होगा, बोन्स पे होगा और बाकी सिस्टम पे इफेक्ट होगा, उसकी कॉग्निशन पे इफेक्ट होगा, बिकॉज यू नो दैट estrogen also affect on your cognition. Understand, this is a MCQ question. Your estrogen level that affect on your cognitive level. No, intervention. Informational care sessions, how you will do it. Obviously, आप informational care दोगे, non-pharmacological intervention करोगे, no use of benzodiazepine, analgesic and placebo. Placebos are medicine which are given just a vitamin. If patient goes to gynecologist, she gave multivitamin just for nothing. A young girl who has no deficiency of vitamins, obviously taking proper food and intake is good. While you are giving the multivitamin, overloading her, these are acting as placebo. Patient will become dependent after it. And the other चीज है benzodiazepine. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में पेशेंट होती है तो क्या करते हैं कि उसको रादर देन दैट कि उसको रेफर करते हैं साइकेट्रिस्ट को। वो उससे जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो स्टार्ट कर देती है बेंजोडाइजेपिन, एनाल्जेसिक देती है। These all things are basically psychologically making her a sick role. So we will avoid it. Complicated cases, obviously complicated, बाकी reassurance आप करोगे, उनको informational care दोगे, proper counseling करोगे, but when you think that patient is complicated,
it is the case for the psychiatrist, and please refer her. Don't take it as your challenge. That is the challenge of a psychiatrist. Now, girls and boys, all of you know that when you reach at the age of puberty, you come across many hormonal changes, and there are physical changes, mental changes. Girls and boys both are worried about those changes. They have a lot of curiosity about different things, sex and this and that. अब वो जो चीज़ है उसको कैसे कवर होता है नॉर्मली हमारी फैमिलीज में एल्डर सिस्टर होती है मदर होती है रीश्योरेंस करती है एंड you are satisfied. But if again the problem is at that extent that it is disturbing your daily routine, then you have to consult a psychiatrist or psychologist. Now, come for the topic which we left on last, I think, Wednesday. That was psychological changes during pregnancy. What happened? Again, there are a lot of hormones. Estrogen, progesterone एक surge आता है, increase level हो जाता है, body changes होती हैं. Body changes में क्या होता है? Nausea, vomiting, and psychological changes. You are irritable, disturbed due to these changes. What will happen? आप first trimester में pregnancy is full experience of growth, change, enrichment, and challenge. If it is, if someone is primigravida, means primary first pregnancy, fear and expectations about becoming a parent. Obviously, you don't think so that you are capable at that time. Can you manage everything? It is for both, for father and mother, but both. They have fear and expectations. Fears are obviously आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझते जो वो पेरेंट्स हैं फर्स्ट उनका प्राइमरी ग्रेविडा है फीमेल का अपने आप कि मैं इसको बियर कर सकूंगी कि नहीं लाइक मैं बेबी को की प्रॉपरली अपब्रिंगिंग कर सकूंगी या नहीं इमोशंस इन बोथ मदर एंड फादर obviously first trimester में क्या होता है anxiety provokes tears sudden emotional swings fear of abortion because all of you know that rate of abortion is more in first trimester so need extra emotional support from the family member now at this stage emotional support that is needed from your support is needed from your family members, that may be your mother-in-law, your mother, and your other your husband. Second trimester. Second trimester when a female is gaining weight, self-conscious about the weight because baby now baby is growing day by day, weight is putting on. Worry about the fetal movement. In the second trimester, fetal movement starts. All the time patient is, I am not saying patient, the female lady, because healthy, wealthy lady is capable of bearing that pregnancy. That is not a patient, but that pregnant lady that is worried about the fetal movement all the time because if it is missed, then obviously having fear that अल्लाह ना करे कोई pregnant abortion ना हो गई हो miscarriage ना हो गया हो worry for the congenital abnormality in fetus can you listen me properly in mass just give me a message can you listen me okay thank you no here the husband support is needed because if husband make her more conscious about weight and other things, her irritability, then
she will become more worried about that because वो जो उसका वेट का सेल्फ कॉन्शियस था वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हस्बैंड भी उसको कंट्रीब्यूट कर देगा, उसको एनकरेज करना होता है, हस्बैंड की मॉरल सपोर्ट नीडेड होती है इन सेकंड ट्राइमेस्टर। Understanding the common psychological changes that occurs during pregnancy will help both expectant mother and father to understand themselves and their partner. अब ये जो होती है आपकी at this stage when your motive is same motive means obviously you are becoming father when someone is becoming father and mother of a child दोनों का है। तो अब क्या है कि आपके मोटिव एक जैसी है, अंडरस्टैंडिंग विल बी कम बेटर। Even the issues which are not understood, that will also be obvious at this stage. Now, childbirth and prepuberty. After childbirth, a period comes, that is prepuberty is the period between childbirth and return of uterus to the normal size. It is approximately 6 weeks. That is also called in Pakistan and India, that is called Achila time. Achila time is that when involution of uterus is complete. Your uterus becomes to a normal size. वो जो इतना बैगी बड़ा uterus हो गया जिसने एक बेबी को amniotic fluid को कैरी किया हुआ था, अब वो जो बैग है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, श्रिंक होने में एक टाइम तो लगेगा, that is about 6 weeks. In the 6 week uterus involution complete हो जाती है, but in these 6 weeks obviously again what comes, वो जो हार्मोनल लेवल का इंक्रीज हुआ था उसके बाद डिलीवरी के बाद वो ही हार्मोनल लेवल आपका इस तरह हुआ डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रोजन हार्मोन्स एंड अदर हार्मोन्स in your bodies are increased and some hormone disturbance हो गई है। You will see कि वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है it will cause psychological issues during puberty. It vary according to your situation, according to your environment, according to your previous psychiatric illness, vary from woman to woman. During postpartum period, 85% women experience some type of psychological disturbance. For most symptoms, the symptoms are mild, short-lived. However, 10 to 15% of women develop more significant symptom of depression and anxiety. Understand? 85% experience some of psychological disturbance, but 10 to 15% डिप्रेशन एंड एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है, उनका डिप्रेशन वो थ्रू चलता है, उसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। Now, 3 types. Today, it is very important for your life, for your examination point of view, and for your MCQs. So, listen it properly. Postpartum psychiatric illness. That is postpartum blues, postpartum depression, and postpartum psychosis. Kindly listen it properly and make a difference between 3. Okay? Postpartum blues. It appears that about 50 to 85% of women experience postpartum blues during the first 2 weeks of delivery. First 2 weeks of delivery. Okay? 50 to 85%. First 2 weeks of delivery. Women with blues more commonly report mood lability, fearfulness, anxiety, and irritability. Dear students, I will mention to you that sometimes this is a myth that अगर female needs a boy और उसको बेटी हो जाती है तो at that time उसके अंदर ये symptoms आ जाते हैं। No. It is not related with your child sex. It is just related with the hormones, and these hormones are obviously disturbing both in the case of baby boy and baby girl. Okay,
tearfulness होगी, anxiety होगी, irritability होगी, but the most important point that appears up to 2 weeks after delivery. Now, postpartum depression. If the blues period extends after 2 weeks, then it is converted to postpartum depression. 2 weeks postpartum blues extend कर गया है, 2 weeks से ज़्यादा हो गया है, it is converted into postpartum depression. Understand the difference. The symptoms of postpartum depression include depressed or sad mood. The same is in blues, uh, postpartum blues. Tearfulness, उधर भी है, इधर भी है. Loss of interest in usual activity, उधर भी है, इधर भी है. But इधर यहाँ पे क्या problem है? She has no interest in baby, totally no interest in baby, no interest in her growth, in dressing. ठीक है? Feeling of guilt. Guilt is not related, again it is not related with the sex of baby. It is related that she is not feeling happy to become a mother. Okay, feeling of worthlessness, incompetence. In that case, वो जो आपकी postpartum blues हैं, after 2 weeks there is no guilt. Obviously female is happy having being becoming a mother, लेकिन यहाँ पे वो गिल्ट हो गया है, गिल्ट में चेंज हो गया है. फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, इनकम्पिटेंस. अपने आप को वो उसी तरह समझ रही है कि आई एम नॉट एबल टू डू एवरीथिंग फॉर माय बेबी, और मैं प्रॉपर ग्रोथ नहीं उसकी कर सकती, मैं उसकी केयर नहीं कर सकती. तो क्या है, इनकम्पिटेंस आती है, फटीग आती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती है. स्लीप डिस्टर्बेंसेस, that is a point which is even you can say you will give it 2 to 3 marks, because sleep disturbance तो वैसे ही फीमेल को होगी, बिकॉज वो जो बेबी के स्केड्यूल है उसके साथ चलेगी, तो वो एनी केस होगी. चेंज इन एपिटाइट होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे. पोस्टमार्टम डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आएंगे. नाउ वी कम्स फॉर द साइकोसिस. बेटा क्या हुआ आपका? पोस्टमार्टम ब्लूज 2 वीक्स तक रहे, लो मूड रहा, थोड़ा डिप्रेशन, लो मूड रहा, इरिटेबिलिटी रही, टीयरफुलनेस रही, और उसमें क्या हुआ डिप्रेशन में, वो एक्सटेंड कर गया मोर देन 2 वीक्स, और फीलिंग ऑफ गिल्ट आ गई, वर्थलेसनेस आ गई, इनकम्पिटेंसी आ गई, स्लीप डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट आ गई. नो come for the postpartum psychosis. You don't think so that postpartum psychosis is the stage after depression. That is stage before depression. That may be stage before blues. ठीक है? ये क्या होती है? postpartum psychosis. Postpartum psychosis basically start हो जाता है within 48 hours after delivery. Okay? Please listen it properly. It started within 48 hours of delivery. There are, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मैंने आपको लिंक शेयर किया है. Then you can make a good difference between depression and psychosis. Depression comes after blues. 2 weeks के बाद अगर वही postpartum blues extend हो गया, डिप्रेशन हो गया. अगर वही postpartum अब psychosis is totally a different thing that appears in within 48 hours after delivery. कैसे होते हैं? हेलुसिनेशंस आ रही हैं, डिलीजन्स आ रही हैं पेशेंट को. जो अगर आपको हेलुसिनेशंस और डिलीजन्स का डिफरेंस नहीं आता तो काइंडली गूगल करो एंड सर्च इट. ड्रास्टिक मूड स्विंग्स होती हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच होती है, ग्रॉस डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर होती है, एक्सट्रीमली डिफरेंट बिहेवियर होते हैं. समटाइम पेशेंट से इतना डेंजर होता है
वो बेबी को किल भी कर सकती है, बिकॉज डिलीजन्स और हेलुसिनेशंस, उसको वो जो हेलुसिनेशंस आ रही है, डिलीजन्स क्या उसको आ रही है, फॉल्स बिलीफ क्या आ रहा है कि ये हो सकता है, ये आए कि ये जो बेबी है इसके अंदर कोई जिन है, ये मुझे कैद करना चाहता है, ये बेबी मेरा बच्चा नहीं है बल्कि ये किसी जिन का बच्चा, लाइक डिलीजन्स है ना, तो शी विल ट्राई टू किल हर, हिम और हर। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस होगी, एंगर होगी, एजिटेशन होगी, बहुत समटाइम शोर करेगी, समटाइम बिल्कुल चुप हो जाएगी पेशेंट, और वो उसमें उसकी जो वो साइलेंस है उसमें उसको वो डिलीजन्स और हेलुसिनेशंस आई, किसी वक्त भी वो कोई ऐसा एक्शन कर सकती है। नो, द फर्स्ट टास्क आपका साइकोसिस में बेटा सबसे पहला जो होता है, अपने बेबी को पेशेंट से अलहदा कर देना होता है, उसको आपने नर्सरी में कर देना होता है, और गिव हर हर हिम टू हर रिलेटिव्स। ठीक है, आपने सबसे पहले जो करना है, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आपने सबसे पहले बेबी को मदर से अलहदा कर देना है। In case of postpartum psychosis, it appears within 48 hours. Now, postpartum psychosis is the most severe form of the postpartum psychiatric illness. It is a rare event that occurs in approximately 1,000 women after childbirth. Its presentation is often dramatic, with the onset of symptoms as early as first 48 hours to 72 hours. A young lady, 22 years old, is presented with history of low mood, disturbed sleep, decreased self-care, lack of taking care of newborn. उसने डिलीवर किया है बेबी को 20 वीक्स बिफोर, हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्पशिया था उसका। शी हैज नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। तो क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज डिप्रेशन। देर इज नो डिलीजन, नो हेलुसिनेशन, बट क्या है, उसने 20 वीक्स बिफोर किया है। ये आपको एक छोटा सा सिनेरियो दिएगा। Who are risk for the postpartum depression? Which type of the patient who are at risk? प्रीवियस एपिसोड ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पहली प्रेगनेंसीज में अगर हुआ है, डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो डिप्रेशन में थी। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, अगेन साइकेट्रिक इलनेस अगर उसको ऑलरेडी है, देन शी इज प्रोन फॉर द पोस्टमार्टम डिप्रेशन। रीसेंट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, चाइल्डहुड के इवेंट भी हो सकते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर मैरिज हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि वो जो गुड एनवायरनमेंट आप बेबी को देती हो और मदर को देते हो, दैट इफेक्ट्स ऑन बेबी, आपके बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट करता है वो एनवायरनमेंट। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट उस लेडी को देती हो, तो वो जो एनवायरनमेंट है, दैट इज गुड इफेक्ट फॉर बेबी। इवन कहते हैं कि आपके ये जो है आरएनए कोड है, उसमें जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं। हाँ, जेनेटिक चेंजेस जो है, गुड एनवायरनमेंट ऑफ फादर एंड मदर बोथ इफेक्ट्स आपके कॉग्निटिव एबिलिटी कहाँ पे होती है, आपकी जो मेमोरी होती है वो प्लेस्ड होती है हिप्पोकैम्पस वहाँ पे। तो चलो एक ज़्यादा टॉपिक इंक्रीज हो जाएगा। नो, इनएडिक्वेट सोशल सपोर्ट, अगर सोशल सपोर्ट उसको प्रॉपर नहीं है, इन लॉज आर पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव, देन इट द प्रॉब्लम्स आर मैरिटल problem, obviously primary gravida, precious pregnancy, unwanted pregnancy, बहुत प्रेशियस है अगर प्रेगनेंसी, तो अगेन वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी ना, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसके साथ क्या है कि वो डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, इसका मतलब बेटा ये है, डोंट थिंक सो कि उस लेडी के चिल्ड्रन 14 से बिलो होंगे तो दैट विल हैपन। ये है कि हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वहाँ पे समटाइम्स गर्ल्स अंडर द 14 आर प्रेग्नेंट।
तो अब वो गर्ल्स हैं उनके अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं. Most women suffering from postpartum depression do not receive adequate treatment. इनको डिप्रेशन वाली पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, साइकेट्रिक एवेल्युएशन चाहिए, मेडिकेशन चाहिए. Postpartum psychosis is a psychiatric emergency. As early as possible, you will refer the patient to the psychiatrist. ठीक है, for the admission. Obviously, no, it is not your case. आपने डिलीवरी करवा दी, आपने उसका एंटीनेटल सारा कर लिया था सब कुछ. अब वो साइकेट्रिस्ट का केस है. आपने जब उसको साइकेट्रिक वार्ड में भेज देना है और खुद जाके विजिट करना है फॉर द गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन. आपने विजिट करना है, पेशेंट अब वो साइकेट्री का हो गया है. अंडरस्टैंड इट. Puerperal depression, refer to professional psychiatrist. Postpartum blues, social support reassurance is enough. Parenting a child with special needs, living with and loving a disabled child. For me, this topic is obviously very touchy topic, heart touching है. But अगर आपने मैंने कल आपको एक लिंक सेंड किया था, काइंडली उसको विजिट कर लेना. स्पेशल किड्स नीड स्पेशल पेरेंट्स. पेरेंटिंग स्पेशल पेरेंटिंग इज रिक्वायर्ड इन दैट. Suppose parent of a 3 years old boy comes to a pediatrician with a complaint that their child cannot talk. 3 साल की उम्र हो गई है, बोल नहीं सकता और उसको बाकी कोई हेल्थ इशू नहीं है. After a full checkup, he is diagnosed as a case of Down syndrome. The parent took the child to another doctor because they think that this doctor is not so experienced, not competent. ठीक है. क्या है यहाँ पे, क्या स्टेजेस आती हैं पेरेंट्स की, क्या बीइंग अ पेरेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. और बेटा आपका भी यही है, बीइंग अ डॉक्टर यू आर आपको इतना बोल्ड नहीं होना कि आपने उस पेरेंट्स को इस न्यूज को बहुत हेजिटेटली ब्रेक करना है. इसको ब्रेक करने के लिए अगर आपको कोई डेज रिक्वायर्ड है, 2-3 दिन चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, टाइम तो उनका वेस्ट. 1 हफ्ता तो हो गया ना वेस्ट. 1 हफ्ते से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बट आपने इस न्यूज को प्रॉपरली ब्रेक करना है क्योंकि वो पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होती है. In 1969, Elizabeth Kubler-Ross identified 5 stages in grieving. In her book, that special kids need special parents. Very interesting book. Interesting, yeah, you can say, but I said that the first stage is denial. Parents denial में जाएंगे. Parents try to refuse the fully accept what has happened. The denial was the time to access a new situation. Denial basically आपका defense mechanism है. I think in coming in this week you will understand the defense mechanism from Dr. Shahid. That is for your health. You take time. अवॉइडिंग आप क्या करते हो, वो जो डिनाइल होता है वो उससे आपका वो जो हार्मोनल सर्ज आया है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है बिकॉज यू आर गिविंग अ टाइम. Staying in denial can be a way of avoiding responsibility, maybe even punish the child for the poor performance and consequences can be reversed. अब इसमें और डिनाइल में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर डिनाइल प्रोलॉन्ग हो जाए, आपने प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया न्यूज को, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशनल केयर प्रॉपर नहीं दी, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं की, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपने प्रॉपरली नहीं की एट दैट टाइम, बट विल द प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या होता है, डिनाइल में चलेगी। उसका जो बेबी का ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, दैट विल बी डिलेड। इतना डिलेड होगा, यू नो, दैट ब्रेन, एक बच्चे का ब्रेन जो है ऑन डेली बेसिस इट इज ग्रोइंग, न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं। अब वो जो आपने डिले कर दिया है ड्यू टू बैड वे ऑफ breaking bad news and like not giving a proper informational care, वो जो बेबी का ट्रीटमेंट है वो डिलेड हो गया है एंड इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सेकेंड स्टेज आती है एंगर, गिल्ट अबाउट द चाइल्ड डिसऑर्डर, फाइटिंग एंड yelling to not responding at all. Anger is from hurt. Sometimes it can help the parent change or motivate them to seek justice. They may protect their anger towards teachers, project their anger towards teachers. वो एंगर एक दूसरे के ऊपर भी होता है। तो हस्बैंड वाइफ को कहते हैं कि यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, आपने कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू टुक सम मेडिसिन, आर यू you have not taken a proper food, proper female कह सकती है you have given me a stressful environment, that's why baby is suffering from that। तो वो क्या होता है, एंगर एक दूसरे के ऊपर हो रहा होता है। ब्लेमिंग, एंजाइटी इज अनदर ग्रीफ स्टेट। एंजाइटी में क्या होता है, most parents blame themselves। आप पेरेंट्स की ब्लेमिंग होती है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। दैट आई सेड यू कि एंगर में भी एक दूसरे को कर रहे होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होती है एंगर की, टूवर्ड्स टीचर होती है, टू ईच अदर, इवन टू चाइल्ड, दैट यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट टेकिंग केयर, you are doing it intentionally। If someone, have you seen the movie Tare Zameen Par? वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अगर किसी ने नहीं देखी, आपसे शायद आप लोग बहुत छोटे थे तब की वो मूवी है, बट दैट इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। उसमें ये सारी जो फेजेस हैं, डिनायल, एंगर, ब्लेमिंग, whenever you get a time, please view that movie। और उस मूवी में डिसलेक्सिया होता है, बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। she is not able to write and read at that time। पेरेंट्स उसको ब्लेम कर, उसको बोर्डिंग में फर्स्ट वो परफॉर्म नहीं करता, उसके बाद उसको बोर्डिंग में करवाते हैं कि ही नीड्स सम स्ट्रिक्टनेस, और स्ट्रिक्टनेस होती है बोर्डिंग में भी होती है। 8-10 years old boy is disturbed more and more, psychological disturbance होती है। उसका ओनली प्रॉब्लम डिसलेक्सिया होता है, उसकी मेंटल एक्टिविटी वगैरह एवरीथिंग इज फाइन, बट ड्यू टू दैट डिसलेक्सिया वो कोप नहीं कर पा रहा होता, अपने स्टडीज के साथ प्रॉपरली उसको कैरी नहीं कर रहा होता। तो अब क्या होता है कि एक टीचर होता है जो कि उसको अंडरस्टैंड करता है। काइंडली व्यू दैट मूवी एट योर एज टाइम, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप एटलीस्ट ये सारी स्टेजेस को आप खुद रिकॉग्नाइज करोगे और कभी नहीं भूलोगे। ग्रीफ एंड डिप्रेशन, ग्रीफ एंड डिप्रेशन ठीक है, ब्लेमिंग भी होगी। उसके बाद एक स्टेज आती है जब एक्सेप्टेंस आ जाती है। ऑब्वियसली व्हेन इट इज प्रोलॉन्ग, अब पेरेंट्स के अंदर क्या होती है, जब एक्सेप्टेंस आती है तो वो ग्रीफ और सैडनेस आती है। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, they are acknowledgement of the situation। They may feel new grief over years and difficulty achieving various। अब वो grief वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब वो देखते हैं कि बाकी उसकी एज के बच्चे सक्सीड कर रहे हैं, दे आर अचीविंग देयर माइलस्टोन एट देयर टाइम एंड देयर चाइल्ड इज नॉट अचीविंग दैट माइलस्टोन, तो वो जिसे कहते हैं ना, वो दर्द, वो जब उनका दर्द होता है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दुआ करती है दर्द बढ़ता रहता है, बिकॉज वो टाइम के साथ साथ
उनका जो ग्रीफ होता है वो फ्यूचर की तरफ, बच्चे के फ्यूचर की तरफ चला जाता है. Worry and grief often go together. When the parents are finally aware of how they feel about them, it means that parents respect the circumstances and reality. It's during this time that people move forward, they form new ideas, take greater responsibility. अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बच्चे को वो वोकेशनल एक्टिविटीज पे लगाते हैं, कोई स्किल के लिए लगाते हैं, कोई उसके लिए फ्यूचर के लिए ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अगर पेरेंट्स ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो इस बच्चे का ये बच्चा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, so that they take the responsibility for that. और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट प्लान करते हैं उसके फ्यूचर के लिए, और उसके लिए कोई स्किलफुल और वोकेशनल एक्टिविटीज को चूज करते हैं. साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस बाय अ चाइल्ड. अब वो बच्चा जो 3 साल का है ना, ऑब्वियसली ही इज ग्रोइंग डे बाय डे. अब वो ग्रो भी कर रहा है, उसकी एज भी बढ़ रही है, तो उसको, उस बच्चे को भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस होती हैं. डिसेबल्ड लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वी कांट अंडरस्टैंड. साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट इज अ ग्रेट कंसर्न. इसके लिए आपकी टोटल सपोर्ट एंड अवेयरनेस रिक्वायर्ड होती है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, आइसोलेशन, लो सेल्फ स्टीम. आपने देखा है कि घरों में क्या किया जाता है, अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको एक्सपोजर नहीं किया जाता है. आप किसी मैरिज, किसी की वेडिंग पे जाते हो, किसी फंक्शन पे जाते हो, तो क्या होता है, जो पेरेंट्स जिनके डिसेबल्ड बेबीज होती हैं उनको वो घर छोड़ के चले जाते हैं. आप उनकी सेल्फ स्टीम मोर लो हो जाती है. एट द स्कूल, इफ दे आर एडमिटेड एट, एडमिशन हो गया उनका स्कूल में, उनका लो IQ है, लाइक दे कांट कोप विद द स्टडीज, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऑब्वियसली दे वांट, और वो उसके एडमिशन करवाते हैं. तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस के वो पूरा नहीं हो सकता, पुअर ग्रेड्स होते हैं, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं प्रॉपर होता, अगेन उसकी सेल्फ एस्टीम डैमेज होती है. According to Rogers' theory of personality, acceptance that is unconditional positive regard. ये हमारा बच्चा है, whatever he or she is. If parents are responsible for everything, if parents think, अल्लाह ना करे, नॉर्मल बच्चे होते हैं, ड्रग एब्यूज हो जाता है कोई बच्चे, if parents take the responsibility like that कि कोई फॉल्ट तो हम में है, कोई हमारी ट्रेनिंग में फॉल्ट है, हमने कहीं पे इग्नोर किया है, कहीं पे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो अब क्या होता है, अब एट दैट स्टेज व्हाट विल हैपन, अगर पेरेंट्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड लें, वो ड्रग एब्यूज को भी अपना फर्ज समझ उसको इसी तरह एक्सेप्ट करें जो उनके बाकी बच्चे हैं, तो क्या होगा, उसकी वो प्रॉपरली मोटिवेशन कर लेंगे फॉर पुटिंग दैट एडिक्शन. जेन्युइननेस, फेयर रहे बच्चे के साथ, सच बोले, झूठ नहीं बोलना, आपने इवन झूठ का वर्ड यूज भी नहीं करना. माइंड ओपननेस, उसको बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें. ये तो पेरेंट्स का होता है. एक्सेप्टेंस बाय सिबलिंग्स you can understand that. Acceptance by the peers, ये आपको फोटोग्राफी बहुत कुछ बता रही है. Parental coping divided into 3 patterns: maintaining family integration, cooperation, family integration, obviously all families in siblings, father, mother, grandparents, they are also involved. Cooperation, optimistic definition of situation. Think about the optimistic
your attitude should be optimistic and your thinking should be optimistic about the situation. Think the good things which can be happened in this situation. Maintaining social support, that is required. Self-esteem, psychological stability. Understanding the medical situation if there is any medical problem. Identification of potential of the disability can improve the eventual outcome. अगर आप डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लो, लाइक द पेरेंट्स एंड सब बोथ अंडरस्टैंड द डिसेबिलिटी, तो क्या होता है, अगली मेडिकल प्लानिंग होती है, इंटरवेंशन होती है, आउटकम बेटर हो जाता है. If you remain in denial, anger, and blaming for a long time, तो क्या होगा? Obviously मेडिकल प्लानिंग और इंटरवेंशन लेट हो जाएगी. और वही होता है कि आपकी जो कॉग्निटिव एज है बच्चे की, उसको आप खत्म कर देते, मिस कर देते, और फिर वो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है. Parents of children with disability often need additional support. Now think about the parents. पेरेंट्स वो किस मिस्ट्री से पास कर रहे हैं, वो किस ग्रीफ से पास कर रहे हैं, हाउ दे आर एडजस्टिंग देयर सेल्फ. इस जो हमारी सोसाइटी है स्टिग्मेटाइज करती है, छोटी छोटी बातों को स्टिग्मेटाइज करती है. वो जो पेरेंट्स हैं स्टिग्मेटाइज हुए हैं ड्यू टू देयर डिसेबल्ड चाइल्ड, दे आल्सो नीड एडिशनल सपोर्ट. उनको भी सपोर्ट चाहिए. और हेल्दी पेरेंट्स होंगे तो बच्चे को लुक आफ्टर कर सकेंगे ना. हाउ टू सपोर्ट योरसेल्फ, उनको ट्रेन करना है. बीइंग अ डॉक्टर, गुड डॉक्टर, आपने उनको क्या ट्रेन करना है, आपने काउंसलिंग करनी है. और काउंसलिंग में उसको क्या करना है कि उनको बताना है कि आप अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकते हो. बिल्ड अ सपोर्टिव सिस्टम फॉर योरसेल्फ. Talk about your challenges in front of, not in front of child. You can talk about the challenges in front of other family members, so that कि आप उस चैलेंज पे जब बोलते हो ना कि मैंने पास होना है एग्जाम में, और किसी के सामने ये चैलेंज ले लेते हो, देन आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है. यू डू इट, यू वर्क हार्ड फॉर दैट. कीप अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड. फाइंड टाइम फॉर द फ्रेंड्स. ओके, ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स जो सफर कर रहे हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ हैं, ऑल द टाइम दे आर गिविंग द टाइम टू दैट चाइल्ड, और अपनी हेल्थ उनकी एक क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाती है, और वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो उनको डिप्रेशन में ले जाए. नो, फाइंड टाइम फॉर फ्रेंड्स, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गो इजी ऑन अदर्स योरसेल्फ. अपने लिए भी टाइम निकाल लो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ड्रेसिंग, एंड डू शॉपिंग फॉर फीमेल्स. एंजॉय योर शॉपिंग. नाउ psychosocial intervention, informational care by the senior member of health team, adequate time of interview, detailed discussion, multidisciplinary approach, psychologist, worker, nurse and doctor. ये एक टीम होती है जो इंग्लैंड अमेरिका है, वहाँ पे अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड होता है तो एक पूरी टीम होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर होता है. वो मंथली विजिट करते हैं टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, और पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ को अप्रोच करते हैं. नो, साइकोलॉजिकल इश्यूज इन ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी है बेटा, अंडरस्टैंड बेटा, पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया. स्पेशल किड्स नीड स्पेशल पेरेंट्स, अंडरस्टैंड दैट. स्पेशल पेरेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली केयर करते हैं अपने किड्स को, उनकी तमाम स्टेजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं. ओके, thank you beta, thank you. The people who are giving response really encouraging me, because when I look for the your chat, then I come to know that I am with you.
अदरवाइज मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कंप्यूटर पर हो रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनी क्वेश्चन बेटा एट दिस टाइम? अब हम अगले टॉपिक की तरफ जरा जाते हैं। छोटे छोटे 2 टॉपिक है, लेट्स गो। इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू। साइकोसोशल इश्यूज इन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी वार्ड कौन सा होते हैं? जहाँ पे कैंसर पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी हो रही है, रेडियोथेरेपी हो रही है, फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती हैं। वो फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या है? किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, मेडिसिन वो ले रहा है, इंजेक्शन ले रहे हैं फॉर like for the cancer treatment। तो वो जो फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है पेशेंट को। ऑब्वियसली उसको प्रोग्नोसिस का नहीं पता, ही इज अनश्योर ऑफ प्रोग्नोसिस, ही इज अनश्योर ऑफ कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये सारी की सारी चीजें उसको डिस्टर्ब करती है। एनाल्जेसिक इश्यूज, when he is taking multiple like morphine ले रहा है उसके लिए एज ए एनर्जेसिक, तो क्या है मॉर्फिन, क्या है स्लो डाउन कर देती है। इवन मॉर्फिन जो है आपके डेंड्रॉइड जो स्ट्रक्चर है तो कॉग्निशन को भी कम कर देती है। डेंड्रॉइड्स की न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स जो है उसकी वो उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। केयर गिवर बर्डन, ये आपको ऑन्कोलॉजी अब एक वो भी एक या 2 वो भी लोग हैं हु आर गिविंग केयर टू अ पेशेंट। अब वो उनको भी उसका भी बर्डन साइकोलॉजिकली पेशेंट भी फील कर रहा है कि माय वाइफ और माय चिल्ड्रन आर टेकिंग केयर ऑफ मी, दे आर गिविंग मी टाइम, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका बर्डन होता है। और उन वो जो केयर गिवर होते हैं वो भी फील कर रहे होते हैं कि एक टाइम आता है जब वो बर्डन फील करना शुरू कर देते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट बर्नआउट, बेटा बर्नआउट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। बर्नआउट आपको पता है एक सिंड्रोम है जो फिजिशियन, डॉक्टर्स, नर्सेस में हो जाते हैं everywhere। It is not in related with only medical field, everywhere where you are working for a long time or in uncomfortable circumstances, your skills are not proper or circumstances are scary, तो at that time आपका बर्नआउट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड में जो बर्नआउट होता है ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है। रीजन बिहाइंड कि उनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ट्रीट इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट आप अपनी पूरी कर रहे हो बट रिजल्ट्स आर जीरो एंड यू नो अबाउट दैट। एक पेंक्रियाटिक कैंसर है, आप दे रहे हो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, कीमोथेरेपी हो रही है, रेडियो व्हाटएवर इट इज गोइंग ऑन, लेकिन आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या है। यू नो अबाउट द प्रोग्नोसिस, यू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यू नो दैट पेशेंट पेशेंट्स का आपको जब किसी चीज का आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा, रेशियो लाइक 100 में से 50 पेशेंट आपके रिकवर नहीं होंगे, आपके सामने उनकी डेथ हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट योर बर्नआउट। यूथनेसिया, अनदर प्रॉब्लम इज यूथनेसिया। यूथनेसिया एक इश्यू होता है, एक फिनोमेना है, ऑल ऑफ यू नो, where the patient, terminally ill patient requests the doctor to kill him with any injection or medicine. It is very common in oncology work, because when patient know about the prognosis, know about and cannot bear about the pain of that chemotherapy and radiotherapy, disfigurement एक रेडियोथेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसकी डिसफिगरमेंट होती है। वो ऑब्वियसली पेशेंट के लिए ये थ्रेटनिंग चीज होती है और वो
रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज दिस फैक्टर फॉर द कैंसर पेशेंट। प्रीवियसली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो पेशेंट में ऑलरेडी होते हैं और साथ ही कैंसर हो गया है, विच गिव मोर psychological issues for the patient, cancer patient. Behavioral risk factors. Behavior obviously depends a lot कि अगर इरिटेबल नेचर है, एंशियस है पेशेंट, ऑलरेडी उसकी लाइफ एक एंशियस वे में है, एंशियस रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, पर्सनैलिटी ए टाइप पर्सनैलिटी है, तो क्या है ये उसके लिए फर्दर क्या है साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाएगा, उसको कोमॉर्बिड साइकेट्रिक इलनेस कॉज करेगा। तो लाइफ इवेंट होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, I think you understand. Locus of control is that कि आप internal locus of control है और external है. You are blaming others for your if you are blaming others for your illness or your whatever your failure in your life, if you are blaming the other people, तो locus of control क्या है? External है। At the जो external locus of control होगा, what will happen? क्या होगा कि आप उसको improve नहीं कर सकोगे। That is dangerous. अगर internal locus of control होगा, you will adjust and coping आपकी capacity होगी। You will take it as a challenge अगर internal होगा। कोमॉर्बिड साइकेट्रिक इलनेस, इसको जरूर असेस करना है। इसके लिए असेसमेंट बहुत जरूरी होती है कि अगर साइकेट्रिक इलनेस है तो फाइनली रेफर टू साइकेट्रिस्ट। एटलीस्ट रेफर तो नहीं कर सकते हम ऑन्कोलॉजी वार्ड में, बट साइकेट्रिक की वो ले लेंगे, एवेल्यूएशन करवा लेंगे और उसकी कंसल्टेशन लेंगे। डिप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन, डिप्रेशन अगेन है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को सबमिसिव करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते किसी के साथ, अपने आप के साथ एक्सप्रेस नहीं करते, अगेन ये आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस को इंक्रीज करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट बर्नआउट इज द सिंड्रोम ऑफ इमोशनल एग्जॉशन, depersonalization and sense of low personal accomplishment lead to decreased effectiveness at work. आपकी क्या होती है कि वो जो एंथुसियाज्म होता है, जो आपकी वर्क कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। इवन यू बिकम कूल्ड फॉर द पेशेंट। वो जो आपकी एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस सिचुएशन। सो दैट इसका ये होता है कि चेंज द ड्यूटी, रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है फॉर मंथ्स। Intervention, non-pharmacological intervention, breaking bad news, breaking bad news, it must be in a proper way by a senior person, not from a junior one. Psychiatric consultation law, social and emotional support from the family and from other society members. Address the emotional burnout of the staff. Other topic, it is psychosocial issues of operating theatre. एक हॉरिबल सी सिचुएशन होती है, कहीं पे नाइफ पड़े हुए हैं, डॉक्टर जो है वो भी बिल्कुल हिडन में है, आपकी अप्रोच जो होती है बड़ी ओटी के जो लेमैन होते हैं उनकी अप्रोच बड़ी स्केरी होती है कि उनके लिए ये कुछ स्केरी एनवायरनमेंट होता है। सबसे क्या होती है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, ऑब्टेनिंग कंसेंट आपने प्रॉपर वे में लेनी है, उसके पूरे 5 के 5 कंटेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। प्री ऑपरेटिव टीचिंग, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या करोगे आप, इंफॉर्मेशनल केयर प्रॉपरली दोगे पेशेंट को,
इज इट ओके? आप प्रॉपरली उसकी इंफॉर्मेशनल केयर दोगे, इंफॉर्मेशनल केयर, और आपने अगेन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर डोज देनी है। डोज प्रॉपर मीन कि बहुत ज्यादा आपने ड्रा भी नहीं देना, बहुत कम इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी। डजंट मैटर, छोटा सा ऑपरेशन है 10 मिनट में हो जाएगा, दीज आर रॉन्ग थिंग्स। 10 मिनट में हो जाएगा, यू आर सेइंग 10 मिनट्स। पेशेंट जाता है थिएटर में, घंटे बाद आता है, बिकॉज देर इज लिस्ट, और पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इट टेक्स एटलीस्ट मतलब हाफ एन आवर 1 आवर। अब जो वो रिलेटिव जिनको आपने 10 मिनट का कहा है कि 10 मिनट का ऑपरेशन है, वट इज द कंडीशन, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, वो इरिटेबल हो जाएंगे। So you truth is very important thing. इंफॉर्मेशनल किया, आपने टाइम ऑफ सर्जरी प्रॉपर बताना है, एक्सटेंड ऑफ पेन कि कितनी आपको पेन होगी, हम 1-2 इंजेक्शन लगाएंगे, या लोकल में आप कर रहे हो तो लोकल में ये पेन कितनी देर तक पेनलेस रहेगा, कितनी देर के बाद पेन स्टार्ट हो जाएगी, ये आपने उसको प्रॉपरली बताना है। एम्पैथेटिक एंड प्रोफेशनल मैनर हेल्प, अपने एम्पैथी शो करनी है और प्रोफेशनल मैनर हेल्प करनी है। नॉट लाइक दैट वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, वो कुछ नहीं होता, 10 मिनट में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। दीज आर द वर्ड्स which are acceptable from a layman, not acceptable from a doctor. So being a doctor, being become responsible person, बेटा इसको आपने अभी से अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा रखना है। इन्फॉर्म कंसेंट, अगेन आपने ऑल कंटेंट कंप्लीट करनी है। केयरफुल प्री ऑपरेटिव टीचिंग कैन रिड्यूस द एंजाइटी एंड फियर ऑफ पेशेंट। अगर प्रॉपरली आपकी टीचिंग होगी तो पेशेंट की एंजाइटी एंड फियर कम हो जाएगा। थैंक यू बेटा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एवरीवन? नो मैन, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? कुछ समझ में आया बच्चों? कुछ समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। Take care of yourself, your family, and your surrounding. May you live long